है ना। नाम तो ऐसा है जैसे मतलब लग रहा है कि देते हो। देखो Does anybody know what is Land Development Bank? यार चेक करना है इसको एक बार, लैंड डेवलपमेंट बैंक को। पता नहीं, लग रहा है कि एक कहीं सेकंड एक सेकंड, इसमें लिखा हुआ है, इसको आंसर देख लेते हैं। सी है, regional rural banks grant loan to individual, firms, household, etc. in rural areas. NABARD is a regulating refinancing agency. Land Development Bank lend funds to large-scale projects in rural areas. है, तो थोड़ा और देख लेते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। So here Vijay is saying LBD provides long-term finances to members directly through its branches. But answer में वो नहीं है ना? आंसर में तो RRB लिखा है। But the answer is also made with some combination, no? Combination of optionals. So Okay. नहीं Okay, तो ये जो सोल्यूशन लिख रहा है कि प्रोवाइड्स फंड टू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज, तो ये गलत है क्या? नहीं, गलत तो नहीं हो सकता। I mean, broadly that is also correct ना, कि large scale if there is any project happening तो land चाहिए ना basic, so maybe they'll be granting loans for such land projects. हम तो फाइनेंशियल दिया है तो वो लार्ज फर्म्स के लिए भी बात कर रहे हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। IS स्कोर पे लिखा है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया आर ऑफ क्वासी कमर्शियल टाइप, ऑल्दो दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव Society Act. They are association of borrowers as well as non-borrowers organized on principle of limited liability. The working capital of LDBs are raised from share capital, deposit, debentures, and borrowing from the State Bank of India, Commercial Bank, and State Cooperative Bank. However, a large part of their funds are raised through long-term debentures. Under its federal structure, LDB consists of two tiers: Central Land Development Bank at state level and the Primary Land Development Bank at Taluka level. So these banks, Primary Land Development Bank at Taluka level, were originally organized to cover one or few taluks in district. At present, they are eligible to cover one development block. All land owners are eligible to become members and borrow funds by mortgaging their land. The principal borrower is enrolled as a class member, and others who have interest in the mortgaged property are admitted as class members. In Central Development Bank, these members of CLDBs are the PLDBs and a few individual promoters. It grants long-term loan to agriculture through PLDBs and branches of CLDBs. It raises funds through floating debentures. NABARD and LIC subscribe for the debenture in large amount and former also. ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब इससे मेरे को यही समझ आया, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए ये चीज है। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी लैंड को मॉर्गेज करते हैं और उससे वो फंड आई थिंक इकट्ठा करते हैं। I think land is a state subject, no? So states would have made many such banks. इसमें एक इन्फोग्राफिक है ना, उसको एक बार जूम इन करना ना। यार वो हो नहीं पाएगा, ये बहुत बेकार है मेरे को लग रहा है। ये देख
उसने रेजोल्यूशन सही नहीं डाला इमेज का। आई थिंक मेरे को ऐसे समझ में आया है कि ये जो बैंक है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये शायद सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन देते हैं जो उस बैंक के मेंबर्स होते हैं, इसलिए शायद ये स्टेटमेंट में ये लैंड डेवलपमेंट बैंक गलत हो गया है ना। Yeah, could be. Yes, yes. It is written even in Vijay's statement. It is the same. Members are given long-term loans करके. करेक्ट करेक्ट, दैट्स व्हाई मतलब ये यहाँ पे गलत। नेक्स्ट 36 देखते हैं। 36 with reference to India consider the following. पहला है nationalization of bank, formation of RRB, adoption of villages by bank branches. Which of the above can be considered as step taken to achieve financial inclusion in India? सेकंड वाला तो लग रहा है, और थर्ड ये दोनों ही हो गए। बैंक का नेशनलाइजेशन से क्या मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा? 1 2 3 है क्या पूरा? 1 2 3 है, डी है ना। ओहो, तो हो सकता है। तो इसका ईयर बोलो सारा chronologically first time. Nationalization of bank was 69. 69. Okay. RRB 1974. 74. 24. Okay. और आई थिंक बैंक ब्रांचेस शायद लीड डेवलपमेंट बैंक, सॉरी लीड बैंक था क्या उसके अंदर 70s में? नहीं, वो तो बहुत ही नैरो हो जाएगा आई थिंक। Okay. It's okay. I think uska year not required, but RRB I think we must know the year. I think. तो 36 का it was D, all of the above है। nationalization भी इसी पर्सपेक्टिव से किया गया था। RRB is 75. Okay. 75. 74 में आ गया था, 75 में एक्ट आया था। Okay. RRB. So financial inclusion is defined the availability, equality of opportunity to access financial service. It refers to a process by which individuals and businesses can access appropriate, affordable, and timely products and services. These include banking, loan, equity, and insurance products. Nationalization of banks, formation of RRB, adoption of villages by bank branches, etc., are few types of steps toward the financial inclusion. Next, question number 37. 37. With reference to the schemes launched by Union Government, consider the following statements. Ministry of Health and Family Welfare launched Rashtriya Swasthya Bima Yojana. Ministry of Textile launched Rajiv Gandhi Shilpi Swasthya Bima Yojana. पहला वाला पढ़े थे ना वो अनिल स्वरूप जी में? वो तो I think mind में बैठ गया। ये शिल्पी स्वास्थ्य doesn't connect to textile ना as a name, right? शिल्पी I think Sculpture ऐसा हो सकता है, बट मतलब शिल्पी का मीनिंग क्या है? sculpture है ना? वो शिल्पकार नहीं होता है वो। वैसे आर्टिस्ट होता है जनरली। हाँ, एनी आर्टिस्ट इज कॉल्ड शिल्पी। Correct. शिल्पी ठीक है, आई थिंक देख लेते हैं इसको, डेलिब्रेट करने का फायदा नहीं लग रहा है। 37 का डी दोनों ही गलत थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अर्लियर इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आई थिंक जब ये सवाल पूछा गया था मे बी तब ये लेबर के अंडर थे, बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर डाल दिया था। आई थिंक अनिल स्वरूप जी वाले में हमने पढ़ा भी था, वो लेबर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, तब उनके ऊपर ही काम डाला था। Correct. हाँ, correct. Then objective to provide financial protection against catastrophic health costs, to improve access to quality healthcare for below poverty line. ठीक है, आई थिंक इसको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब तो शायद ये आयुष्मान भारत के अंदर आ गया ना। I think Ayushman Bharat we can read. ठीक है, ये पूरा एक बार ये शिल्पी वाला देख लेते हैं। मे बी scheme is aimed toward providing financial assistance to artisan community
to access best of the healthcare in the country. The scheme includes the following criteria for the artisan who wish to avail it. Handicraft artisan, annual income per family, 1 plus 4 include self, spouse, etc. etc. All craft member, whether male or female, between age 1 to 80 years, all craft person will be eligible to be covered under the scheme subject to the condition. Okay. एक बार आयुष्मान भारत को देख लेता हूँ. $51 पेज दोहरा दो. 2021 ओपन करो ना, लेटेस्ट. हाँ 21 वाली है यार, ये क्या हो गया. हाँ गई यार वो वाली स्कीम. आई कुछ चेंज थोड़ी हुआ इसके अंदर, इसमें से देख ले क्या. पता नहीं, आई मीन लेटेस्ट वो कुछ इन्फोग्राफिक्स वगैरह डालते हैं ना, तो इट विल बी मोर इंटरेक्टिंग. ये भाई यार उसको टैग करना ग्रुप में. माने जी टाइप कर लो, आ जाएगा. मेरे को मैसेज भेजा है उस ग्रुप में, देख लीजिए. हाँ क्या है, देखो आगे. हाँ थोड़ा ऊपर कीजिए, शायद आ जाएगी. अबे एक बार इसको देख लेता है, वो पीडीएफ खोल रहा है. कोई रीड कर देगा इसका ऑब्जेक्टिव और ये सब. to To provide provide medical cover up of rupees 5 lakh per year per household for secondary and tertiary healthcare. इसमें प्राइमरी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सेटअप है ना. NHA will PHCs कहीं और कवर्ड है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर. In this only it's covered, no? That health and wellness हाँ centers. प्राइमरी. ओके ठीक है. ये है ना, पहले सब सेंटर है, फिर पीएचसी होगा, फिर आता है ये विलेज में होता है, फिर ऊपर में डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, ठीक है, फिर टाउन में शायद कम्युनिटी सेंटर, उसके बाद कोई बड़ा हॉस्पिटल अगर होता है तो होगा. ये स्ट्रक्चर है ना. किसी ने शायद भेजा था ना इसका, या हमने देखा था आयुष का स्ट्रक्चर. विजय ने सेंड किया था शायद. ठीक है, पीटीएम मिल जाएगा. लोअर मोस्ट में सब सेंटर है, तो उसके बाद आता है पीएचसी आपका, या उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है. हाँ करेक्ट है, करेक्ट.
और सब सेंटर में बस क्या बोलते हो जो लोकल लेवल होता है, मतलब बहुत कम होता है इसका। ये अभी पूरा recently आया। वाइट, पूरा वाइट दिख रहा है, राइट? तुमको भी व्हाइट दिख रहा है क्या ये? हाँ हाँ। मतलब ये व्हाइट ही है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। तो ये लिखा बाजू तो हुआ है, लिखा है। ये देख क्यों नहीं रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ ना, आयुष्मान भारत पढ़ दूं क्या इसमें? हाँ पढ़ दे पढ़ दे। हम्म। वो अरे क्या तुम पढ़ लो कौन से प्लीज। कौन से पेज पे है? 59 है क्या? 51 है, 51। एक सेकंड। ठीक है। फिफ्टी वन में। हाँ वो जो पीटी का जो है ना, पीटी का पेज नंबर 51 है। अच्छा, पीटी का कोई। हम्म। तो इसमें है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम was launched to extend health insurance coverage to all residents of Jammu and Kashmir. अच्छा, सेहत स्कीम स्पेशली JNK के लिए थी. It would operate on insurance mode in convergence with PMJ and would be portable across India. तो बेसिक अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव ये था टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. कौन सा गोल था? हेल्थ वाला 5. 3 था। Health is 3, I think, ना? 4 education, 5 gender equality. ठीक है. And its underlining commitment, which is to leave no one behind. Salient features. This flagship scheme was launched as recommended by National Health Policy 2017 to achieve the vision of universal health coverage. This initiative has been designed to meet SDG and its underlining commitment, which is to leave no one behind. तो ये स्कीम होलिस्टिकली एड्रेस करती है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, दैट इज कवरिंग प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड एम्बुलेटरी केयर एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल. तो दो इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, और ये कंपोनेंट है, इट इज़ फंडेड थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन. एम है इसका कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इट कवर्स बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विच इंक्लूड्स प्री असेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. और वहीं पे PMJ है, दैट इज़ फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर. So PMJ is centrally sponsored. It was launched in 2018. It is the largest health assurance scheme in the world. Okay. It was earlier known as National Health Protection Scheme before being rechristened. The households included are based on the deprivation and occupational criteria of socio-economic caste census 2011. तो डिप्राइवेशन और ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया जो यूज हुआ था SCCC में, सेंसस में, तो वो फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली. तो इट वाज सबस्यूम्ड द देन एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. पहले ये लेबर में था, अभी हेल्थ में आ गया है, यही हुआ है ना, which had been launched in 2008. Therefore, it also covers family that were covered in RSBY but are not present in SCCC 2011 database. PMJ is fully funded by government and cost of implementation is shared by central and state governments. NHA is the implementing body. नेशनल हेल्थ मिशन भी देखना है क्या? हेल्थ मिशन हाँ, इम्पोर्टेंट है वो. ये जैसे कि ये इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वर्ड लिखते हैं तो, लेकिन फुली फंडेड भी है, तो सेक्टर स्कीम में यहाँ क्यों लिखा नहीं है? आई थिंक गवर्नमेंट में वो दोनों को इंक्लूड कर रहा है, स्टेट को भी और सेंटर को. ओके. NHA भी क्विकली पढ़ दो ना एक बार, इम्पोर्टेंट है वो भी.
Electronic Vaccine Intelligence Network has been used the requisite customization during the COVID pandemic for ensuring continuation of essential immunization services and protecting our children and pregnant mothers against vaccine preventable diseases. Pregnant women के तो लगी कहाँ vaccine against vaccine? I think vaccine In general बोल रहे हैं. in general बोल रहे हैं, not ठीक just है. COVID vaccine, in general just vaccine. ओके हाँ ठीक है, टीके जो लगते हैं. ओके. ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन इन चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टालिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडिंग लोकली एंडेमिक डिजीजेस, access to integrated comprehensive primary healthcare, population stabilization, gender and demographic balance, revitalize local health tradition and mainstream Ayush, universal access to public services for food and nutrition, sanitation and hygiene, and universal access to public healthcare services with emphasis on services addressing women's and children's health and universal immunization, promoting of healthy lifestyle. तो हमने जो आशा वर्कर्स देखा था, एक नर्स, ऑक्सिलरी नर्सेस, मिडवाइफ्स भी देखा था, और एक और कौन देखा था? आंगनवाड़ी. ये सब भी हेल्प करता है. Salient features है इसके, it is major instrument of financing and support to states to strengthen public health system and healthcare delivery. The center state funding pattern is 60-40 for all states with effect from financial year 2015-16, except all northeastern states and other hilly states such as Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, for which the center state funding pattern is 90-10. Financing to the state is based on the state's program implementation plan. So under initiatives under National Rural Health Mission are आशा वर्कर्स है, जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग्स, RMNCH+A, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health, free drugs and free diagnostic services, district hospital and knowledge center, mainstreaming Ayush, revitalizing local and health tradition. तो यहाँ दो सब स्कीम है, एक है रूरल के लिए और एक अर्बन के लिए. States show that improved progress made on key outcomes output such as IMR, MMR, immunization number and proportion of quality certified health facility that etc. can receive additional funds at incentives. IMR और MMR की रेट बताओ. MMR 70 अराउंड है ना? टारगेट है वो तो 70 टारगेट है. हाँ, वो LTV टारगेट है हमारा. तो आई थिंक 100 कुछ होगा. 100, 112, 116 है शायद, 112 116. पहले 122 थी लेकिन उससे भी रिड्यूस हो गई है. अभी फिलहाल 2020 का डेटा 112 116 में से है. 112 116 और दोनों 1000 पे होते हैं. नहीं मैटरनल 1 लाख को, मैटरनल 1 लाख. ठीक है. The electronic vaccine intelligence network is being implemented under the National Health Mission. It aims to provide real-time information on vaccine stocks and flows and storage temperature across all cold chain points in country. Even combines state-of-the-art technology, a strong IT infrastructure, and trained human resource to enable real-time monitoring of stocks and storage temperature of vaccines kept in multiple locations across country. टीम के अंदर कोविड वैक्सीन है ना? आई थिंक उसके लिए सेपरेट है ना, कोविन करके. हाँ, सेपरेट. कोविन किसका कोलैबोरेशन है? भारत बायोटेक और वैक्सीन वाला है. अच्छा, IIT का कोई है क्या? पता नहीं, तो बता दो.
कोविन के पार्टनर्स है आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, उमंग, CSC दैट इज ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एंड UNDP। ठीक है, उसकी साइट पे नीचे लिखे हुए ऑल पार्टनर्स। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, सॉरी ग्रुप में भेज दो। हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 Ashwat, which of the following can aid in furthering the government's objective of inclusive growth? Promoting self-help group, promoting MSME, implementation of Right to Education Act. तो ये बताओ, inclusive growth। One and all सब of कुछ ही होगा, ऑल ऑफ द होगा। Correct. 38 का ये all of the above. As per OECD, inclusive growth is economic growth that is distributed fairly across society and creates opportunity for all. Okay. So I think इसके लिए क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं ना? हाँ, इक्विटी। हाँ, तो मतलब इक्विटी कब, सॉरी इक्वालिटी कब इक्विटी बनती है? उसमें कुछ इक्वेशन देना है ऐसा? कोई इंटरजनरेशनल इक्विटी क्वेश्चन ना? नहीं, व्हेन डू वी कॉल इक्विटी, कि मतलब ये सिचुएशन इक्विटी है rather than equality? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दें तब ऐसा। इक्विटी इंक्लूसिव ग्रोथ उसी को ही बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी इक्विटी मतलब means to achieve equality, right? Equity means होता है the ultimate goal is equality. Okay. Elements of inclusive growth: skill development, financial inclusion, promoting SHG, technological advancement, quality and affordable education to all, implementing the Right to Education Act, quality and affordable health to all, and MSME etc. तो ये सब inclusive growth मेंस में आता है। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, तो उसमें हेल्पफुल होगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला ह्यूमन कैपिटल हो गया। और ये ओके, तो बोलो कौन सा एसडीजी में इंक्लूसिव ग्रोथ मेंशन्ड है? क्या मेंशन है? एसडीजी 11 या 12 में से है किसी में। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूजन डेवलपमेंट सिटीज है क्या? एसटीजी इंक्लूसिव ग्रोथ का 11 11 12 में से कोई? हाँ, ये है ना। 8 तो है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, और 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंक्लूसिव ग्रोथ देखा जाए तो है। इंक्लूसिव ग्रोथ के नहीं है। हाँ, ये 9 है, क्योंकि ये 9 में लिखा है build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। और 8 में लिखा है promote sustain inclusive and sustain economic growth। तो ये 8 है। मल्टीपल एसडीजीज के अंदर बोल सकते हैं, 8, 9 और 10 के अंदर बोल सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ का। जी 8 बोल रहा है इसमें। डायरेक्ट इज 8। ओके, जो भी ऑडियो आ रहा है क्या? हेलो? नहीं, विजय की कट गया आवाज। ठीक है, अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर। आई थिंक ये तो ऐसे ही बता दो, किसने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जनधन योजना? financial inclusion। करेक्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आंसर 39 का करेक्ट। तो रीड कर दो यार आदित्य। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना was introduced with the target of opening was introduced with the target of opening bank account for around 7.5 crore uncovered households in India by 26th of January 2015. This scheme was successful in opening around 12.54 crores account by 31st January 2015. अच्छा, with deposits exceeding rupees 10,000 crore. तो ये स्कीम दोनों कवर करती है, अर्बन एज वेल एज रूरल,
and provides an indigenous debit card, RuPay card, to each of its account holders. अच्छा, RuPay card का recently कौन से स्टेट ने एक्सेप्ट किया था सेकेंड फेज? स्टेट ने भूटान कंट्री, सॉरी भूटान है ना? आई थिंक और भी कई कंट्रीज में लॉन्च हो चुका अब तो। हाँ नहीं, एक्सेप्टेबल तो बहुत है, बट रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने बता दिया। अच्छा, मतलब हाँ, आई थिंक सेकंड कंट्री शायद भूटान था, बट अब तो आई थिंक यूएई और मालदीव काफी सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया। आई थिंक क्रोनोलॉजिकली साउथ ईस्ट एशिया में भी है ना, बहुत सारी हाँ। कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर रखा है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड किसका इनिशिएटिव है? एनपीसीआई। ठीक है। No minimum balance is required for opening an account under this scheme. The beneficiary can open his or her account in any bank branch or business correspondent outlet at zero balance. ठीक है? It ensures to provide an on core banking system along with mobile banking using USSD facility. तो मतलब ये कि वो बटन वाले फोन में भी एक्सेस कर सकते हैं फैसिलिटी। Rupees 5,000 overdraft facility for Aadhaar linked accounts and RuPay debit card with inbuilt rupees 1 lakh accident insurance cover is one of the main features provided by this scheme. आई थिंक ये दो लास्ट के दो ये जो है ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब याद ही रह जाता है, ये थोड़ा याद नहीं रहता। ओवरड्राफ्ट है और एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस भी है। एक्सीडेंट मतलब थर्ड पार्टी वाला या पेनफुल? यानी खुद का भी। ठीक है। वो तो आई थिंक मोटर व्हीकल वाला जो इंश्योरेंस होता है उसके अंडर होता है थर्ड पार्टी, यहाँ पे तो खुद के लिए। संजय उसमें अपडेट कर दो, रिसेंट विजन में दिया है कि इट इज 10,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, बढ़ा दिया है। हाँ, आई थिंक ये टेम्परेरी बढ़ा है, परमानेंट बढ़ा दिया अभी कोविड के टाइम करा नहीं ये तो। पता नहीं, विजन के पीडीएफ में देख रहा था, वहाँ पर फैसिलिटी अप टू 10,000 इज एलिजिबल लिखा है। और कोई एडिशन है? एडिशन है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इज 1 lakh, okay, that is mentioned. And then these account holders are eligible for DBT, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and Mudra Yojana. So they all are eligible under this. मतलब ऑल दो स्कीम जिसके अंदर गवर्नमेंट कर रही है उसके अंदर सारे बेनिफिशियरीज को इसी अकाउंट में अगर मिलता है पैसा। करेक्ट। वो जैम ट्रिनिटी है ना, जनधन, आधार और मोबाइल। हाँ, मोबाइल। I mean, I काम कर सकते हैं wherever schemes comes ना, I think we can preferably read from vision only, क्योंकि ये थोड़ा डेटा वगैरह आउटडेट हो जाता है, राइट? ठीक है। इसमें सर्च करना है क्या कुछ और या आगे बढ़े? विजन पढ़ना है? नहीं, आई थिंक अभी इसके लिए नॉट रिक्वायर्ड, आई थिंक। ओके। The next is question number 40. Regarding Atal Pension Yojana, which of the following statement is or are correct? First, it is a minimum guaranteed pension scheme mainly targeted at unorganized sector workers. सही है क्या? करेक्ट। अनऑर्गेनाइज्ड के लिए है ना, राइट है। Right है। Second, only one member of a family can join the scheme. ये नहीं होगा। ये नहीं लग रहा। Same amount of pension is guaranteed for the death for the spouse for life after subscriber death. I think ये तो पढ़ा था। 50% है। नहीं पूरा है ना। 50% दूसरे वाले में, कोई नए वाले में था ना। वो तो दूसरी है, वो आई थिंक वो मनधन योजना करके है ना, उसके अंदर है 50%। यहाँ पे फुल था स्पाउस को। आई थिंक गोइंग बाय दैट लॉजिक ओनली वन मेंबर, ये तो नहीं था, सेकंड तो नहीं था, तो आई थिंक 1 and 3 हो जाएगा फिर ये 40 का 43 ठीक है, सही है। तो अटल पेंशन योजना स्कीम वाज लॉन्च ऑन 9 संजय वहाँ पर पढ़ दो ना, वहाँ पर पढ़ दो। अच्छा जल्दी आ जा भाई।
कोई पढ़ेगा इसको? तो इस स्कीम ने 5 साल कंप्लीट किया है। तो ऑब्जेक्टिव है द सब्सक्राइबर्स वुड रिसीव द फिक्स्ड मिनिमम पेंशन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 पे स्टार्ट कब होती है, अच्छा भी पढ़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है। Intended beneficiary. Intended beneficiary है open to all Indians between the age 18 and 40 having a saving bank account in a bank or post office। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और या तो बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, और 18 एंड 40। एक और किसी में 42 है, कंफ्यूजिंग शायद, ध्यान रखना 18 एंड 40। एंड इट इज मेनली फोकस्ड ऑन सिटीजन्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है subscribers can make contribution, अच्छा, it replaced the Swalamban scheme। The minimum period of contribution by any subscriber under the APY is 20 years। Minimum 20 years होना चाहिए। Subscribers can make contribution on monthly, quarterly or half yearly basis। Subscriber would receive the guaranteed minimum monthly pension of rupees 1000 or 2000 or rupees 3000, 4000, 5000 at the age of 60 years। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 50% ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और ₹1000 पर एनम, whichever is lower, for a period of 5 years। The co-contribution could be availed only by the subscribers who have joined Atal Pension Yojana between 1st June 2015 to 31st March 2016। ज़्यादा ही डीप में दे रखा है। Are not covered by any statutory social security scheme, are not income tax payers। Unorganized है तो इसलिए not income tax payer। Subscribers can voluntarily exit before the age of 60 years from APY subject to certain conditions on deduction of government co-contribution and return interest thereon। In case of premature death of subscriber, death before 60 years of age, spouse of subscriber can continue contribution to APY account of subscriber and for the remaining vesting period till the original subscriber would have attained the age of 60 years। In case of death, spouse of subscriber shall entitle the same amount of pension till his or her death। After the death of both the subscriber and spouse, the nominee of subscriber will be entitled to receive as accumulated till age of 60 years of the subscriber। It is administered by PFRDA। The institutional architecture of National Pension Scheme would be utilized to enroll subscribers under APY। बीस साल में तो पैसा अपने आप डबल हो जाएगा, बिना मतलब का स्कीम है। एनपीएस अभी बंद हो गई क्या? एनपीएस वही थी ना कि इंदिरा गांधी के टाइम या वाजपेयी के टाइम आई थी और बहुत ही अच्छी स्कीम थी। कोई तो सुन ले इनकी बात। No idea about NPS। हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम थी तो, लेकिन गूगल कर रहा था इतनी देर। इन्होंने भी नहीं डाला एनपीएस अभी तक। तो चेंज कर दिया होगा ना, रिक्वेस्टन कर दिया होगा। बहुत पुरानी स्कीम है ये आई थिंक चल ही रही है, एनपीएस चल रहा है, रिक्वेस्टन कुछ नहीं कर रहा है इन्होंने। बहुत ही ज्यादा चल रहा है, बस जो नई स्कीम में एंट्री के लिए मना कर देते हैं बस कि तुम उसमें ऑलरेडी कमा रहे हो तो इसमें नहीं आओगे तुम। मृणाल में बहुत अच्छे से दे रखा है। पिलर पता है क्या किसी को? इंश्योरेंस वाले में होगा ना, इंश्योरेंस एंड पेंशन वाले में। ठीक है। ठीक है, मृणाल का यहीं से बोल देगा।
Yes. ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लो. Who can join? Any citizen 18 to 60 years. NRI can also join if he has account in Indian bank. Then who cannot join? Below 16. ठीक है, वो समझ में आ गया. Person declared insolvent, person of unsound mind. ठीक है, ये थोड़ा peculiar चीज है. NRI को भी allowed है इसके अंदर. What is प्राण? प्राण तो I think when you subscribe to a new pension scheme, you have to give a unique account number known as permanent retirement account number. ठीक है, तो पेंशन स्कीम है ओल्ड एज पीपल के लिए होते थे, उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि प्राण जो है उसके लिए है. और आधार वर्सेस प्राण ये नहीं इम्पोर्टेंट. प्लेयर्स इन एनपीएस सब्सक्राइबर person who joins NPS scheme, PFRDA, main boss for NPA, CRA, Central Record Keeping Agency, NSDL work as CRA for NPA. It maintains the record of every subscriber based on its PRAN number. We call this NSDL as work as depository and holds your security. और fund manager इसके लिए ICICI, UTI, SBI, Kotak, etc. are the fund managers for NPS. You can decide which fund manager you want to pick up. When you contribute your money to NPS, it goes to these funds manager. They invest your money in following things. संजय, हाँ? ये बहुत पुराना है, सर ने अपडेट नहीं कर रखा है. हाँ यार, 8 years ago है. तो एक बार मैंने ग्रुप में भेजा है PDF. सारी स्कीम देख ले क्या पेंशन वाली, या कंफ्यूज हो जाएंगे. ये सारी हैं इसमें. ठीक है, देख ही लेते हैं. अभी अपन ने तो देख लिया. क्या हो गया यार? तो आग लगा दो इस लैपटॉप पे. ठीक है यार, कोई पढ़ दो. लाइफ इंश्योरेंस वाली है, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस. आवाज आ रही है ना? आ रही है, बोलो. तो इसमें ना संपूर्ण बीमा ग्राम योजना है जो 2017 में आई थी. ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लेके आए थे. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट वन विलेज आइडेंटिफाइड एंड दैट विलेज कवर ऑल हाउस होल्ड्स विद अ मिनिमम ऑफ 1 रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. अच्छा, मैं पेज नंबर 170 पढ़ रही हूँ. ऑल विलेजेस अंडर द सांसद आदर्श ग्राम योजना विल ऑल्सो बी कवर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है LIC. ये तो कब सेटअप हुआ था उसका दिया हुआ है. LIC के अंडर आम आदमी बीमा योजना लेके आई थी. तो 18 to 59 एजेड है, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन. 200 रुपये पर ईयर का प्रीमियम है. पेमेंट आई थिंक सही है ऐसे करना. आई थिंक इसको छोड़ दो यार, ये ज्यादा ही हो जाएगा थोड़ा. सीधे अटल पेंशन पढ़ लो ना अभी फिलहाल. अटल पेंशन वो सॉरी नेशनल पेंशन पढ़ लो अगर उसमें होगा तो. हाँ, इसमें से वो कर सकते. विजन में भी नहीं है वो. दृष्टि वालों ने डाल रखा है कुछ उस पे, वो सर्च कर लो. तो ये न्यू पेंशन स्कीम 2004 की, ये रीनेम कर दी थी. पहले नेशनल पेंशन सिस्टम था. तो इस न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम में दोज हु जॉइंट गवर्नमेंट सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004 के लिए है. और एम्प्लॉयज़ जो है उनको 10% ऑफ बेसिक पे प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14% ऑफ बेसिक पे. सिंस इंटरिम बजट गोज टू PFRDA, NPS Trust and empaneled NPS fund manager
ठीक है। क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से? ये है 24 पेज नंबर और 189 PDF का। ब्रुनाल वाला ना? एक सेकंड, मैं ये इससे पढ़ देता हूँ, ये लेटेस्ट है, नेशनल पेंशन अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड NPS फ्रॉम जून 2004 एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेस के लिए नहीं था। In 2018 to streamline NPS and to make it more attractive, Union Cabinet approved changes in आर्म the scheme फोर्सेस to के लिए क्या है बोलो? I think उनके लिए तो अपना पेंशन स्कीम रहता है ना। वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है उसका? मतलब 1 रैंक 1 पेंशन तो वो एक कंसेप्ट है कि जो सोल्जर था, जैसे क्या होता था कि सपोज मतलब मैं कोई रैंक पे था और मैं रिटायर हो गया आज, उसी रैंक पे मेरे से 2 साल बाद कोई रिटायर होता है तो उसकी जो पेंशन मिलती थी उसको ज्यादा मिलती थी, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही एंड मी बोथ रिटायर्ड एट द सेम मतलब सेम रैंक, तो वो चीज नहीं मिलता था। तो इसलिए वो चीज चल रहा था कि मतलब जब रैंक एक है तो पेंशन भी एक ही होनी चाहिए, ये था वो। ये 7th पे कमीशन से रिलेटेड है ना? So it means you're telling कि वो स्कीम नहीं है, कॉन्सेप्ट है, राइट? हाँ कॉन्सेप्ट, मतलब उनकी concept है। डिमांड थी कि हमें ये दो इतना, मतलब जो एक रैंक के ऊपर जिनको लोग थे उनको पेंशन बराबर मिलनी चाहिए, ये उनका डिमांड। जो पहले रिटायर हो चुके ना, उनको वो कह रहे थे कि हमें तो इतना कम मिल रहा है और जो अब रिटायर हो रहे हैं उनको ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन लेके आए थे। करेक्ट करेक्ट। NPS is being एक implemented by बार उसको भी पढ़ लो, इसके बाद विजन में दिया है, ओके 9.2.1, ओके। NPS is being implemented by PFRDA in the country, ठीक है। तो अगेन PFRDA हमने देखा इसके अंदर, और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट established by PFRDA is the registered owner of all assets under NPS structure. NPS is structured into 2 tiers. Tier 1 account, this is non-withdrawable permanent retirement account into which the accumulations are deposited and invested as per the option of subscriber. Non-withdrawable है ये. Then tier 2 account, this is voluntary withdrawable account which is allowed only when there is a active tier 1 account in the name of subscriber. The withdrawals are permitted from this account as per the need of subscriber as and when claimed. ठीक है, तो 2 अकाउंट हो गए, एक में से आप विड्रॉल कर नहीं सकते, दूसरे में से वॉलंटरी विड्रॉल अलाउड है। लाइक समटाइम्स हमने शायद पीएफ के अंदर भी देखा है, जो पीएफ अकाउंट्स के अंदर से भी आप एक सर्टेन कंडीशंस के ऊपर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लाइक इन केस ऑफ सम हेल्थ इमरजेंसी या कोई मैरिज वगैरह जो है फैमिली में, तो उस चीज के लिए भी आप उसमें से फंड विड्रॉ कर सकते हो। एक कम्यूट करते हैं ना, वो इसमें अलाउड है ना? का मतलब यही है क्या? कम्यूट करते हैं ना, एक साथ पहले पेंशन या पैसा निकाल लेते हैं जो। आई थिंक 2 दे रखे हैं ना, नॉन विड्रॉएबल है तो उसमें से शायद अलाउड नहीं निकालना। टियर 2 में अलाउड, टियर 2 में लिखा है ओनली व्हेन देयर इज एन एक्टिव टियर 1 अकाउंट, तब वॉलंटरी है, नहीं तो नहीं। ओके। कम्यूट यू मीन व्हेन दे चेंज जॉब्स, राइट? नहीं कम्यूट तो वो होता है ना, एक साथ पहले पैसा निकाल लो क्योंकि आपको इमरजेंसी है। अभी कोविड के टाइम्स में मोदी जी ने भी दिया था कि आप 2000 पैसे पहले निकाल सकते थे क्योंकि पैसा कम था। पीएफ के अंदर भी सेम कंसेप्ट है, आप सारा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते, तो कुछ एक सर्टेन कंडीशन पे पैसा निकाल सकते हो, और कोविड के टाइम पे उस चीज को रिलैक्स कर देता था ताकि लोग ना वो अपनी जो सेविंग्स है उसको यूज कर सके। आई थिंक वो कंसेप्ट है कम्यूट वाला। आई थिंक जो जिससे तुम कह रहे हो ना कंपनी चेंज करने वाला, वो तो आई थिंक शायद पोर्टेबल कंसेप्ट करा है। पहले क्या होता था, अलग कंपनी जाते थे तो अलग पैन अकाउंट यूएन अकाउंट बनाना पड़ता था पीएफ के लिए, वो चीज तो अब उन्होंने पोर्टेबल बना दिया है कि यू कैन ट्रांसफर योर ये पीएफ अकाउंट जो है वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हो, तो मतलब वो चीज पोर्टेबल बना दी उसको। ये भी था कोई। ठीक है। एनपीएस के बेनिफिशियरी, एनपीएस वाज मेड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन of India from May 2009. An individual of India in the age group of 18 to 65 can join. However, OCI and POI
card holders and Hindu undivided family are not eligible for opening of NPS account. ठीक है, OCI नहीं है और POI नहीं है. आई थिंक NRI हमने पहले देखा था, NRI इसके अंदर अलाउड थे. ठीक है, यहाँ पे 18 to 65 है और उसमें 18 to 40 थी. ये NPS है और वो कौन सी थी? APY, अटल पेंशन. ठीक है, अटल पेंशन तो हमने देख ही लिया है, उसको देखने की जरूरत नहीं. तो वन रैंक वन पेंशन एक सेकंड देख लेते हैं. ये इफेक्टिव थी सिंस 1 जुलाई 2014 एंड 5 साल कंप्लीट हो गए. It is a uniform pension to be paid to armed forces personnel retiring in same rank with the same length of service, regardless of the date of retirement. It is to bridge the gap between pension of current and past ex-servicemen at periodic intervals. इसके salient features है, the arrears will be paid in 4 half-yearly installments. However, all widows, including war widows, will be paid arrears in one installment. Pension will be refixed for all pensioners retiring in same rank and with the same length of service as the average of minimum and maximum pension in 2013. Personnel who voluntarily retire will not be covered, and in future the pension will be refixed under every 5 years. Before OROP, ex-servicemen used to get pension as per the pay commission's recommendation of the time when they had retired. अभी कौन सा पे कमीशन चल रहा है? 7 चल रहा है ना. ठीक है, 2016 में आया था ना. ये कहा ना 15 में लॉन्च हुई है ये OROP. ये पे कमीशन का कॉन्सेप्ट समझाना मुझे कोई. वन रैंक वन पेंशन का नहीं, जो मतलब जैसे 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, इस तरह का ये वो किस तरह किया जाता है उसका इन्फ्लेशन के हिसाब से वो बाकी सारी चीजों पे ऊपर करते हैं ना. इन्फ्लेशन ही ना होता है क्राइटेरिया या फिर और भी कुछ. गूगल करना पड़ेगा, मुझे तो सिर्फ इन्फ्लेशन ही याद है. किसी को पता है क्या इसके बारे में एग्जैक्टली क्या चीज है? ठीक है, इसको अपन बाद में देख लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन करते हैं. ओके, वन रैंक वन पेंशन कर लो. वो तो हो गया ना. या ठीक है. 41. Consider the following: hotels, restaurants, motor transport undertaking, newspaper establishment, private medical institution. The employees of which of the following above can have social security coverage under employee state insurance scheme? आई थिंक सारे ही लग रहे हैं ना इसमें तो. गलत तो कुछ कह नहीं सकते. शशांक भाई तुम बताओ इसमें. मुझे तो सारे लग रहे हैं. किसी भी चीज को गलत तो बता नहीं सकते किसी भी ऑप्शन को. चलो ठीक. 41 का डी है, सारे सही हैं. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम. It is under Ministry of Labor and Employment. It protects the employees from against financial distress arising out of events of sickness, disablement, or death due to employment injuries. ESI provides for direct cash compensation for the above cases. ESI is responsible for administration of this scheme. ठीक है, तो ESI जो स्कीम है उसका एडमिनिस्ट्रेशन वही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करती है, और इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बॉडी सेटअप अंडर द ESI एक्ट ऑफ 1948. एलिजिबिलिटी देख लो. ऑल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयज हुज मंथली वेजेस आर और बिलो ₹21,000. ऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे. 10,000 नहीं था, 15,000 या ऐसा कुछ. नहीं, वो तो काफी लो हो जाएगा ना, तो बढ़ गया होगा. ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोल रहा है.
What are the benefits? Medical benefit, full medical care to insured person and his family member with no ceiling on expenditure of treatment. ठीक है, तो मतलब कोई भी सीलिंग नहीं है, कितना भी उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट हो वो सब कवर करेगा. जैसे आयुष्मान में भारत में हमने क्या देखा था, 5 लाख तक का कवरेज था. ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कितना भी ज्यादा खर्चा हो वो लोग कवर करेंगे. Then sickness benefit in form of cash compensation at the rate of 70% of the wages. ठीक है, in form of cash compensation. Then maternity benefit for confinement pregnancy is payable for 26 weeks, which is extendable by further 1 month on a medical advice. Then disablement benefits हैं इसके अंदर, temporary disablement benefit and permanent disablement benefit. Dependent benefit paid in डिसेबल बेनिफिट मतलब डिसेबिलिटी, ये हाँ. टीडीबी. डिसेबिलिटी होती है. जैसे टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो गई कि कुछ दिन बाद में वो ठीक हो गया, तो इस टाइप की जो डिसेबिलिटी होती है उससे मतलब उसको कंपनसेट करते हैं. परमानेंट में अगेन के परमानेंट जैसे एम्प्यूटी हो गया कि कोई हाथ का लॉस हो गया, उस केस में उस टाइप का बेनिफिट देना पड़ेगा. पेड इन फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट टू द डिपेंडेंट इन केस where death is due to employment injury or occupational hazard. तो ये चीज हो गया. राइट, ठीक है. आई थिंक टाइम अब हो गया है. एक चैप्टर देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे का. चैप्टर 1 कर लिया था, चैप्टर 2 कर लिया था, चैप्टर 3 करना है. जन आरोग्य मिशन पढ़ लेंगे. आई थिंक यार स्कीम्स काफी पढ़ ली, थोड़ा इसको ही देख लेते हैं. माने जी निकाल देंगे हम सबको ग्रुप से. माने जी निकाल देंगे, नहीं तो ठीक है. कोई रीडिंग करेगा इसका? मैं पढ़ देती हूँ. पढ़िए. डज इंडिया सोवरेन, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, कोई कुछ नहीं बोल. Does India's sovereign credit rating reflect its fundamentals? No. Theme है, the chapter highlights the bias against emerging economies in sovereign credit ratings. It compares sovereign ratings of different countries on several parameters like GDP growth rate, inflation, etc., and concludes that there is systemic underassessment of India's fundamentals reflected in its low ratings. It identifies implications of this and gives policy suggestions. The bias against emerging giants in sovereign credit ratings. Never in the history of sovereign credit ratings has the fifth largest economy in the world been rated as the lowest rung of the investment grade. BBB और BA3 मिला है, सबसे नीचे होता है शायद ये. चाइना एंड इंडिया इससे भी नीचे होता है आई थिंक. China and India are the हाँ होता है. okay. China and India are the only exceptions to this rule. China was rated A2 in 2005 and now India is rated BBB and Baa3. पहले ये पढ़ लेते हैं, what are sovereign credit ratings? Sovereign credit rating seeks to quantify issuers' ability to meet debt obligations. When favorable, these can facilitate countries' access to global capital markets and foreign investment. Three key credit ratings agencies are CRA, S&P, Moody's and Fitch. तीन credit ratings है, S&P, Moody's and Fitch. Sovereign credit ratings broadly rate countries as either investment grade or speculative grade, with the latter projected to have a higher likelihood of default on borrowings. India is currently rated BBB, Baa3 by S&P and Moody's. A similar trend is seen in
PPP current international dollar terms. Since 1994, the only times that the sovereign credit ratings of the third largest economy in PPP terms has steeply declined has been when emerging giants China and India have become the third largest country. ओके ये पहली मतलब 1994 के बाद पहली बार हुआ है ये परचेजिंग क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे लार्जेस्ट है लेकिन उनका रेटिंग स्लो है मतलब लो है CRAs find it more difficult to upgrade poor countries relative to rich countries for any given improvement in ability and willingness to repay debts. कुछ बोलना है इस पे? आई थिंक अंडरस्टूड है ना, वही सेम चीज जो ऊपर बोल रहा था कि पुअर कंट्रीज के लिए इम्प्रूव करना उनके लिए मुश्किल रहता, मतलब CRAs जो है बहुत मुश्किल से उनको इम्प्रूव करती हैं पुअर कंट्रीज रिलेटिव टू रिच कंट्री, यानी रिच कंट्री को जल्दी कर देती है बट सेम ट्रेंड जो है पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में रिफ्लेक्ट नहीं करती है। यही चीज बोल रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या क्रेडिट रेटिंग दे रखी थी चाइना को 2005 के अंदर इन्होंने A- दे रखी थी और इंडिया को 2020 के आसपास अगेन BBB- दे रखा है। There is home bias in sovereign credit ratings by CRA. The respective home country of CRAs, countries with linguistic and cultural similarity, and countries with higher home bank exposure justified by their political and economic fundamentals. ठीक है, मतलब अपने होम कंट्रीज होती है जहाँ पे वो वहां से जो ऑपरेट करती है उनकी तरफ बाइस्ड रहते हैं तो उनको ज्यादा फेवरेबल लाइट में दिखाते हैं इन कंपैरिजन टू द पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज। ये कहना चाह रहा है। ऐसा होता है कि ये जो मूडीज और ये जो फिच नहीं है वो कभी भी इंडिया के बैंक्स को अच्छा नहीं देते हैं, मतलब BBB से ऊपर तो देते ही नहीं है। तो ये अपने न्यूज़पेपर में बहुत बार आर्टिकल्स आता है कि दे डेलिबरेटली ट्राई टू डू दिस ताकि लोन्स में अपन को प्रॉब्लम हो। बायस करते हैं ना। ठीक है, Yes, एक बार India- ये देख लें एक बार। Where India is an outlier. ये एक है इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट बैलेंस, GDP ग्रोथ रेट, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, जनरल गवर्नमेंट डेट, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एटसेट्रा, CPI और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सभी तो दे दिया। मतलब इन सब चीजों पे इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है फिर भी उसको एड्रेस नहीं कर रहे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है। Does India's sovereign credit rating reflect its fundamentals? While a positive, While a positive correlation between sovereign credit ratings and GDP growth is observed across country, India is clearly a negative outlier. For example, it is currently rated much below the expectation for its level of GDP growth. Then आता है also a negative correlation is observed between sovereign credit ratings and consumer price index inflation. However, India is rated much below expectation for its level of CPI inflation. Similarly, India is a clear outlier on several parameters. Moreover, the outlier status remains true not only now but also the last 2 decades. During most of the 1990s and mid-2000s, India's sovereign credit rating was speculative grade, despite Indian economy growing at an average rate of 6%. Does India's sovereign credit rating reflects its willingness or ability to pay? एक सेकंड, मतलब ये जो तू पढ़े ना उसको समराइज भी कर दे, जैसे तूने ये पूरा पैरा पढ़ दिया उससे समराइज भी कर दे कि ये चीज बोला गया है।
सही है, सही है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन देखा जा रहा है ना बिटवीन सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एंड सीपीआई, बट इंडिया का जो मतलब रेटिंग है वो एक्सपेक्टेशन पे बहुत कम है, सीपीआई इन्फ्लेक्शन अगर आप लेते हो। और क्या है यहाँ पे आउटलायर्स, जो आउटलायर स्टेटस है ये भी कम, मतलब सही नहीं है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एवरेज में 6% से ऊपर है। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो अच्छे क्रेडिट्स दे रही हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी बूम कर रही है। बट सेम चीज इंडिया के केस में नहीं देखा गया। इंडिया की इकोनॉमी जब बूम कर रही थी तब भी वो उससे उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया को अच्छे ग्रेड्स नहीं दिए थे। उन्होंने, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, दो टाइप के ग्रेड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड और स्पेक्यूलेटिव ग्रेड। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब जहां पे फायदा होगा इन्वेस्टमेंट करने से, वो वाले बॉन्ड हो गए, जैसा AAA हो गया या AAA+ हो गया। तो ऐसे रेटिंग इंडिया को नहीं देते थे। इंडिया को वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में नहीं रखते थे, हमेशा स्पेक्यूलेटिव ग्रेड में रखते थे। ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्पेक्यूलेटिव ग्रेड में रखा था। डिस्पाइट इंडिया परफॉर्मिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 6%, जो कि काफी सारी इकोनॉमीज के तो मतलब आसपास भी नहीं पहुंचते। ठीक है, तो ये एक चीज है इसके अंदर। एक ग्रुप में मैंने वो भेजा है सारा टेबल। तो स्पेक्यूलेटिव जो नहीं है, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्पेक्यूलेटिव, तो यहाँ पे डर है अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, ये BBB था ना, BBB-, तो लो मीडियम ग्रेड की तरफ आ गया है। देन आता है, डज इंडियन सोवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट्स इट्स विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे? Current ratings map the probability of default and therefore reflect the willingness and ability of borrowers to meet its obligations. India's willingness to pay is unquestionably demonstrated through its zero sovereign default history, yet India is rated much below expectation for its नंबर ऑफ सोवरेन। कोई और पढ़ लो भाई। अरे क्या कर रहे हैं? छोटा बच्चा है, पढ़ना नहीं दे रहा, कोई और पढ़ लो। मैं शशांक म्यूट कर रहा हूँ फिर तेरे को। अच्छा, शाश्वत क्या से? हाँ भाई है, छोटा भाई। अरे तेरे वहां से आ रहा है कि मैं शशांक को म्यूट कर दिया। अरे यार कुछ भी मतलब मेरे को लगा पता नहीं तेरे एंड से आ रहा, तेरा माइक शायद ऑफ नहीं कर रखा है तूने। ऐसा कॉम्बिनेशन यार। अरे ये आपके टाइम में ये सो जाते थे तो तब हम पढ़ पाते हैं थोड़ा, आज सोया नहीं है तो इसीलिए शोर मचा रहा है बस। ठीक है, माइक ऑफ कर दे। सॉरी आज एक ही दिन। पढ़ो यार, कोई नेक्स्ट पढ़ो। So India's willingness to pay is unquestionably demonstrated through its zero sovereign debt default history. Yet India is rated much below expectation for its number of sovereign defaults since 1990, making it a negative outlier. India's sovereign external debt as percentage of GDP stood at 4%. अपने कल देखा था 2.77 था. Moreover, 54% of India's sovereign external foreign currency denominated debt was owed to multilaterals and IMF, which is not expected to impact credit rating assessment. Mostly foreign currency वाले foreign currency denominated होते हैं, तो these are mostly to IMF या multilaterals. तो ये expect नहीं करते कि क्रेडिट रेटिंग इनसे ऊपर नीचे होगी. तो इंडिया का जीरो सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री है. सोवरेन एक्सटर्नल डेट है 2020 में प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी इज 4% एंड ओड टू मल्टीलेटरल्स एंड IMF इज 54% ऑफ सच डेट फॉरेन करेंसी बेस्ड डिनोमिनेटेड. इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व स्टूड एट $584.24 as of January 2021, greater than India's total external debt, sovereign and non-sovereign, of $556.2 billion. सोवरेन और नॉन सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन मतलब
कंट्री ने जो ले रखा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ले रखा है वो सॉवरेन हो गया, और जो हमारी कंपनीज ले रखे होंगे वो नॉन सॉवरेन डेब्ट हो गया इंडिया के ऊपर। ठीक है। Despite this, India has been consistently being rated much below expectation for its level of short-term external debt during the period 2000 to 2020. So, effect क्या है? Sovereign credit rating changes on select indicator. So, effects are effect of rating downgrade. They do not have strong negative correlation with Sensex return and exchange rate, that is INR upon USD, in the short, medium, and long term. They do not have strong negative correlation. Shares की बात कर रहा है और exchange rate की बात कर रहा है. I think do not have strong negative correlation. तो आई थिंक डाउनग्रेड कर देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सेंसेक्स भी है या एक्सचेंज रेट है वो भी डाउन जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना सारा? ठीक है. Government security yields and spread are not negatively correlated with rating downgrades in the medium term. So, जो yield आ रही है और जो spread है, these are not negatively correlated. Correct. Rating downgrades have a negative correlation with FPI, equity and debt in the long term. FPI, foreign portfolio investment. तो इनका कोई रेटिंग डाउनग्रेड जो कर देते हैं तो इसका कोई नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है हमारे एफपीआई पे इन लॉन्ग टर्म रिटर्न, मतलब आ ही रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है फॉरेन से. ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बता सकते हैं क्या? वो तो स्कीम है ना. नहीं, ये भी जीसेक के अंदर आता है ना? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वो जो सरकार देती है लिक्विडिटी को मतलब कंट्रोल करने के लिए. तो ये मतलब आई एम कंफ्यूज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. आई थिंक वो तो एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट टाइप. वो एक्चुअली जो स्कीम आई थी ना, तो ऐसा हो रहा था कि इकोनॉमी में कुछ चल रहा था तो गवर्नमेंट ने सोचा कि गोल्ड के चीजें ही दे दो ताकि ये इसीलिए ही आई थी ना वो स्कीम कि ताकि लोग, ये था कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग गोल्ड, तो उससे हमारा जो करंट अकाउंट है ना उस पर बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है कि हम सारा इंपोर्ट ही कर रहे हैं. तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में उसे कंज्यूम कर रहे हैं. तो उस चीज को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि आप जो है इन बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा दो और आप उस बॉन्ड का जो प्राइस है उन्होंने लिंक कर दिया विद द एक्सचेंज रेट ऑफ गोल्ड. तो ये रीजन था ताकि लोग जो है गोल्ड ज्यादा प्रोक्योर ना करें सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. सही है. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हेन अ कंट्रीज सोवरेन डेट इज डाउनग्रेडेड, ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन दैट कंट्री मे हैव टू बी डाउनग्रेडेड. Commercial banks downgraded to sub-investment grade will find it costly to issue internationally recognized letters of credit for domestic exporters and importers, isolating the country from international capital market. तो वही अगर डाउनग्रेड कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम होगी कमर्शियल बैंक्स को लोन लेने में. So there is an evidence of pro-cyclicality of credit ratings contributing to financial market instability in emerging economies. So credit rating agencies downgraded East Asian crisis countries more than what would have been justified by these countries, worsening economic fundamentals. This adversely affected the supply of international capital to these countries. आप ऐसे बता सकते हो ना, अपना हेजीमोनी रखने के लिए ये लोग ऐसे रेटिंग्स देते हैं, वेस्टर्न हेजीमोनी, तो ऐसे बता सकते हो. करेक्ट. वो होम बाइस वाला हमने देखा था ना, वो चीज है. और दूसरा क्या होता है, प्रो साइक्लिसिटी करता है. प्रो साइक्लिसिटी का मतलब क्या होगा, जब बूम कर रहा है तब तो आपको अच्छी रेटिंग देगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको पैसा आसानी से मिल जाएगा. लेकिन जब आपकी हालत खराब ही चल रही है कि आप बिल्कुल हर सेक्टर में फेल ही हो रहे हो, तो फिर वो आपके लाके मतलब गले के अंदर फेलियर का मेडल भी डाल देता है.
तो लोगों को दूर से पता लग जाता है कि भाई ये कुछ नहीं करने वाला, तो कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता। तो एक तरीके से अगर सिचुएशन अच्छी है तब तो सभी अच्छा होता है, लेकिन जब सिचुएशन बड़ा खराब होती है तब ये बहुत ही ज्यादा एक कंट्री के लिए सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर देते हैं ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसलिए प्रो साइक्लिसिटी कह रहा है। हमने देखा ना कि 1990s और मिड 2000 में ये इन्होंने क्या किया, मतलब रेटिंग उस समय अच्छा चल रहा था पर इन्होंने दिया नहीं, तो ये भी बता सकते हैं ना। करेक्ट करेक्ट। बट ओवरऑल देखें ना, सबके लिए देखें तो एक प्रो साइक्लिसिटी का चीज रहता है कि अगर बूम कर रहा था तो अच्छी रेटिंग दे देगा, लेकिन जब थोड़ा सा बेकार करने लगता था ना और क्रिटिकल करके उसके साथ और ज्यादा नेगेटिव कर देता उसको। तो जैसा ये लिखा हुआ है ना कि CRA डाउनग्रेडेड ईस्ट एशियन क्राइसिस कंट्री more than what would have been justified by these countries worsening economic fundamentals. This adversely affected the supply of international capital to these countries. यानी मतलब अगर वो नहीं बोल ये ऐसी रेटिंग्स नहीं देते तो शायद वो कंट्रीज थोड़ा फेलियर हुआ है, ये थोड़ा फेलियर हुआ है, उनको बढ़ा चढ़ा के वो जो इमेज होता है ईज ऑफ मतलब जो डूइंग का वो खराब कर देते हैं। करेक्ट सर आता है इफेक्ट ऑफ this argument ना you can apply even to the western media also, जो भी उनका है ना, if you see in the current COVID context, जो image they were portraying ना, like Modi killer ऐसा कुछ they were portraying, western media such harsh image they will portray. Similarly जो भी crisis है ना they will amplify and post, जैसा East Asian crisis था, तो वो है western bias है। then आता है effect of rating upgrade. In the long term, Sensex returns, exchange rate INR by USD, FPI, equity and debt are positively correlated with rating upgrade. FPI equity increased by 303% in the next year of ratings upgrade, and average FPI debt increased at an average of rate of 578% in the next year of ratings upgrade. Table 3. then आता है ये वाला थोड़ा समझा दीजिएगा, समझ नहीं आया। मतलब सेंसेक्स है जो मतलब रेटिंग अपग्रेड हुआ है ना, तो उससे लॉन्ग टर्म में हमारे एफपीआई और ये सब चीजें जो है वो इंक्रीज होती है। ये चीजें वो प्राइस प्रो साइक्लिसिटी वाला ही होगा कि अगर बूम है तो आपको टैग कर देंगे कि हाँ अच्छा चल रहा है, और अच्छा चल रहा है तो फिर क्या होगा, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट वो कैसे करेंगे, वो क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज को देख के उन्होंने क्या आपको ग्रेड दिया उसके ऊपर बेस्ड होके आपको इन्वेस्टमेंट देंगे। तो अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपको इजीली इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, वो वाली बात। तो अगर रेटिंग अपग्रेड होता है तो उसका इफेक्ट जो होता है एफपीआई इक्विटी के इंक्रीमेंट के अंदर हम देखते हैं। सही है। Then आता है macroeconomic indicators as determinants of sovereign credit rating changes during 1998-2020. During years of Indian sovereign credit rating changes, the average performance of macroeconomic indicators, GDP growth, fiscal deficit, general government debt, overall debt, inflation, and current account deficit was better than or similar to the previous year. The average performance of these indicators further improved or was similar in the year of the after the sovereign credit rating change. However, there is no clear pattern between the change in GDP growth and sovereign credit rating changes. All sovereign credit ratings upgrade occurred in the years that witnessed lowest fiscal deficit as compared to the previous year. Then आता है, आप समराइज कर लोगे क्या? अच्छा, आप ये वाला पैराग्राफ थोड़ा समराइज कर दीजिए। तो बेसिकली बताना चाह रहा था इस पैराग्राफ में कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के चेंजेस। ठीक है, तो जो ईयर्स लिस्ट ने लिए 1998 से 2020, so during these years, India's sovereign credit rating changes, the average performance of macroeconomic indicators, जो भी थे, GDP growth था, physical deficit था, government debt, overall debt, inflation वगैरह, were better than or similar to those previous year. The average performance of these indicators further improved or was similar. ठीक है, तो मतलब हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे या तो वो बेटर ही थे जब रेटिंग मिली थी, या उससे पहले वाले ईयर्स में सिमिलर ही थे।
तो कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ था जब इन्होंने हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको चेंज किया था, तब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ज्यादा कोई इफेक्ट हुआ नहीं था। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है, अपने मनमर्जी से बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से बाइस रख रहे हैं कि जब बढ़ रहा था तब एड्रेस नहीं कर रहे थे, या उससे पहले वाले साल में कितना था उस हिसाब से नहीं चेंज कर रहे थे। ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं हुए क्रेडिट रेटिंग चेंज से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे। ठीक है, इसीलिए वो सेकंड लाइन में लिख रहा है, देयर इज नो क्लियर पैटर्न बिटवीन चेंजेस इन जीडीपी ग्रोथ एंड सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग चेंजेस। ठीक है, और all sovereign credit rating upgrades occurred in year that witnessed lower physical deficit as compared to that to the previous year। यानी जब कम हुआ हमारा जीडीपी वगैरह, तो इन्होंने तुरंत उस चीज को चेंज कर दिया, मतलब तुरंत क्रेडिट रेटिंग्स चेंज कर दिया। जैसे अभी भी हम देखेंगे तो BBB- तुरंत ही दे दिया था, जैसे ही वो क्या नाम बोलते हैं वो कोविड पैंडेमिक आया था ना, तो तुरंत ही आते ही इन्होंने BBB- दे दिया था। लेकिन उससे पहले साल 2 साल तक जब ठीक चल रहा था तब इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया था, तो ये चीज दिखा रहा है। तो फिर आता है पॉलिसी सजेशंस। इंडिया एक पॉलिसी। बार विजय, एक बार ये रेटिंग शॉपिंग क्या है बताओ ना। रेटिंग शॉपिंग बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज जो होती है ना, वो अपने मनमर्जी के ना क्रेडिट सॉरी वो क्या होता है, रेटिंग एजेंसीज के पास चली जाती है। जैसे क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, उसको बॉन्ड्स इश्यू करने हैं, तो उस बॉन्ड्स के ऊपर लिखा रहता है कि वो किस टाइप का बॉन्ड है, AAA बॉन्ड है, AAA+ बॉन्ड है, B- बॉन्ड है। तो वो सब रेटिंग एजेंसीज डिसाइड करती है। तो वो क्या करती है कंपनीज, वो ऐसी रेटिंग एजेंसी को हायर करेंगी जो उनको फेवरेबल रेटिंग दे। तो ये शॉपिंग होती है, रेटिंग शॉपिंग। देन आता है पॉलिसी सजेशंस। India's fiscal policy should be guided by consideration rather than be restrained by biased and subjective sovereign credit ratings। तो ये इसके समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है डेवलपिंग इकोनॉमीज मस्ट कम टुगेदर टू subjectivity inherent in sovereign credit rating methodology to prevent exacerbation of crisis in future। तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज इसको बोल रहा है शायद, सबका मिलके काम करने। ब्रिक्स का एक प्रपोजल था ना, टू ब्रिंग एक था उनका प्रपोजल। सार्क का था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लेके आएंगे। ब्रिक्स का भी था, हाँ ब्रिक्स का भी था, सार्क भी था ना। याद तो नहीं आ रहा है अभी, देख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। देन आता है प्रो साइक्लिकल नेचर ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स एंड इट्स पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज स्पेशली low rated developing economies must be expeditiously addressed। then आता है rating agency should be increase transparency including publishing a separate breakdown of the objective and subjective components of rating, minutes of the ratings committee and the voting records। ठीक है, तो यही है ना जो इश्यू है इनके ऊपर। तो बोला गया कि पहला है कि आप मतलब इनके जो बायस पहले ये करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है क्या, जो जितने सारे इकोनॉमीज है उनको मिलके आना चाहिए। फिर है प्रो साइक्लिकल क्रेडिट, ठीक है, इनको एड्रेस करना चाहिए। और चौथी बात रह गई कि इनका जो मैकेनिज्म है इनको ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बरतना चाहिए, तो इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए। यही है ना? करेक्ट, यही। ओके, तो अब ग्लॉसरी पढ़ दे, एक ही है इसके अंदर तो। प्रो साइक्लिकल describes a state where behavior and actions of a measurable person। आवाज बहुत बड़ी दूर से आ रहा है ऐसा लग रहा है। Describe a state where behavior and actions of a measurable product or services, credit rating in this case, move in tandem with the cyclical conditions of the economy। Economic indicators can have one of three different relationships to the economy: pro-cyclic, counter-cyclic और तीसरा है acyclic। counter-cyclic क्या है?
indicators and economy move in opposite directions. और acyclic क्या है? Indicators have no relevance to the health of the economy. तो आई थिंक ये प्रो साइक्लिक और काउंटर साइक्लिक हम पहले भी चैप्टर्स में देख चुके हैं. ये साइक्लिक आई थिंक लॉजिकली समझ में आएगा कि कोई रिलेवेंस नहीं है उसका इकोनॉमी के उसके सिचुएशन. ठीक है, ये समरी एक बार फटाफट पढ़ दे. Chapters at a glance. There is systematic bias against emerging economies in sovereign credit ratings. India's sovereign credit rating do not reflect its fundamentals. Across several parameters like GDP growth, inflation, India is clearly a negative outlier. Means it is currently rated much below expectation for its level of indicators. India's sovereign credit rating doesn't reflect its willingness and ability to pay. India has its own zero sovereign default history, and India's forex reserve are greater than India's total external debt, sovereign and non-sovereign. अभी 500 है ना? 500 क्या फॉरेन रिजर्व करेगा? हाँ इतना ही. 500 Then credit rating downgrades have impact on parameters like FPI inflow. Then आता है access to international capital market, instability in emerging economies, etc. There is no clear pattern between changes in GDP growth and sovereign credit rating changes. Suggestions: fiscal policy should be guided by the consideration of growth and development. Developing economies must come together to address this bias and subjectivity. यही जो कंक्लूजन है वही है. रेटिंग एजेंसी शुड बी फोर्स टू सब्सटेंशियली इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी. राइट. देन क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट और फिर वाइंड अप कर. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट sovereign credit rating SCR. SCR seeks to quantify issuers' ability to meet debt obligation. Favorable SCR can facilitate countries' access to global capital markets and foreign investment. Speculative grade of SCR are projected to have a lower likelihood of default on borrowings. C तो गलत है. C पक्का गलत है, तो 1 and 2. 1 and 2 ओनली हो जाएगा. हाँ ना sorry my count. Chapter 3 1 का 1 and 2 सही है. Next. Then आता है with reference to external debt of India, consider the following statements. India's sovereign external debt as per percent of GDP stood at around 4% in 2020. More than half of Indian sovereign external foreign currency dominated debt was owed to multilaterals and IMF. In January 2011, India's total external debt, sovereign and non-sovereign, exceeded India's forest reserves. 1 and 2 तो सही है. थर्ड क्या है? थर्ड आई थिंक सही तो नहीं लग रहा है. थर्ड डेट ज्यादा तो नहीं हुआ है, मतलब हो सकता है. नहीं हाँ ये तो होना चाहिए ना. टोटल एक्सटर्नल डेट तो ज्यादा ही होगा फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है तो आई थिंक तीनों सही हैं फिर. नहीं सॉवरेन डेट हमारा एक्सटर्नल डेट कम है ना हमारा. हाँ 2%. बट एक्सटेंडेड फॉरेन इज लेस ना. थर्ड का बोल रहे हो क्या? हाँ थर्ड स्टेटमेंट. बट ये फॉरेक्स रिजर्व से कंपेयर करना ना उसे. तो रिजर्व तो है लेकिन कम किससे है? वो जीडीपी से बहुत बड़ा है शायद ना. आई मीन जनरली वी टेल ना कि आवर फॉरेक्स रिजर्व्स कैन मीट द डेट, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, राइट? नॉट श्योर. आंसर ओके चेक कर दो एक बार. नॉट श्योर. सेकंड का सी इज द आंसर. तो सी इज 1 and 2 वाला सही नहीं है. I mean generally हम वही बोलते हैं ना कि we have enough foreign reserves so that even we can meet our external debt, ऐसा कुछ we keep telling ना.
अगर मतलब फॉरेक्स रिजर्व अच्छा होता तो हम डेट खत्म नहीं कर देते। वो वन टाइम थोड़ी खत्म करते हैं। हाँ नहीं वन I टाइम think तो ये भी नहीं, हाँ, देखना वो है ना ठीक कि है। टोटल एक्सटर्नल बोल रहा है, तो मतलब सॉवरेन भी है और नॉन सॉवरेन भी है। जो कमर्शियल उन्होंने भी लिया होगा ना कुछ तो आई थिंक इतना तो नहीं होगा कि वो सब कुछ पे कर दें हम लोग। करेक्ट। ये सोवरेन 4% है, नॉन सोवरेन कितना है? 4% किसका है? सोवरेन एक्सटर्नल डेट किस चीज से कंपेयर कर रहे हो, वो मैं पूछ रहा हूँ, जीडीपी से? हाँ जीडीपी से पूछ रहा हूँ। जैसे फर्स्ट लाइन तो लिखा है ना कि जैसे सोवरेन एक्सटर्नल डेट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी स्टूड एट 4%, तो नॉन सोवरेन एक्सटर्नल डेट कितना होगा जीडीपी का? नहीं दिया हो ना इस चैप्टर में, या मैंने मिस कर दिया? आई थिंक शायद पहले वाले चैप्टर्स में दिया होगा या नेक्स्ट आने वाले में दिया होगा, अभी तो आई थिंक यहाँ तो नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। Then आता है with reference to changes in credit rating, consider the following statement. Upgrade of sovereign credit ratings, SCR, can lead to increase in foreign portfolio investment in the country. Downgrading of rating commercial banks can make it costly for them to issue international recognized letter of credit for domestic exports and exporters. Which of the of them सेकंड are सही correct? है और फर्स्ट है सही है, फर्स्ट दोनों भी सही सही है। है ना, दोनों सही। कि अगर आप रेटिंग अच्छे देते हो तो उनका एफपीआई बढ़ता है। हाँ, अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड होगा ना, तो वी कैन अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्रो साइक्लिकल होता है ना, तो अगर अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, बुरा है तो और खराब हो जाएगा। ऑलराइट, ये The these term term BBB, BAA3 and A-A2 are associated with SCR ना? SCR. डी ये तो बताइए। आईपी एड्रेस का IPv4 और 6 आता है ना। कंस्ट्रक्शन आउटपुट का क्या होता है? दो ही है, हाँ। और हार्मोनाइज्ड कंज्यूमर प्राइस का? हार्मोनाइज्ड ये वो HSN तो पड़ा था, HCP नहीं आइडिया। कंज्यूमर प्राइस को रेट ये कौन करता है? मतलब एक तो होते हैं कि ये जो ISI मार्क्स वगैरह होते हैं। मतलब वो MRP कह रहे हो क्या? हाँ बट प्राइस ये ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सारा कुछ मिक्स कर दिया है मैंने। MRP तो अपने हिसाब से उस चीज को रखेगा, वो बेचने वाला जो है। अच्छा, हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी फॉर यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, चलो सबसे बताओ, which state is the largest literacy rate? किसमें है? ओडिशा। हाँ, मस्का मत मारो। त्रिपुरा। केरला नहीं है क्या? केरला लग रहा है। हाँ केरला ही है। अब बताओ NFHS 5 में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसमें ज़्यादा है, मतलब किसने ज़्यादा इम्प्रूव किया है और किसने कम डाउनग्रेड किया है, इंडिया के चारों भाग अगर आप देखोगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कह रहे हो? हाँ जी। केरला ने इम्प्रूव किया होगा और यूपी सॉरी बिहार और या MP ने डिक्रीज किया होगा। देखिए सिंपल सा है, साउथ जो स्टेट्स है ना, ये इनका इम्प्रूव है, ठीक है, क्योंकि इनके जो पॉलिसी है जो सरकार अभी इम्प्लीमेंट कर रही है वो 1990s में इम्प्रूव